एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। मेघालय कैबिनेट ने मेघालय इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और रजिस्ट्रेशन फी में पूरी छूट दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री मार्क्विस माराक ने बताया कि व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देने वाले खरीदारों को अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशन और एक डेडिकेटेड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी स्थापित करने की तैयारी भी कर रही है। Then 15 years. If you take that vehicle to the scrappage station and if you scrap there, you'll get the certificate. And if you produce the certificate to the, registering authority or district transport officer, you'll be getting that incentive. So Meghalaya, whether we have this scrappage Stations. We are yet to have that Meghalaya, scrappage stations. By when are you planning to establish this? This can be established by any entrepreneur. Whoever is interested, they can start with the scrappage stations. But is the And if you go to the policy in detail, you'll be able to get so many things there. And any entrepreneur who is interested in establishing a scrappage stations, will be very happy to help them out also. You talk about the government have been implemented for the electric vehicle. What problem in Meghalaya? Last year, and whoever comes up with scrappage policy certificate to get a new electric vehicle will be getting some, some kind of an incentive there again. But that will be decided later on. But government has already discussed, cabinet has already discussed this issue also. So there will be lots of incentives if any person is going for an electric vehicle. What about the charging points? Charging points are not that difficult. Charging points can be met at any place. In your house also you can make a charging points. But if you are going for a commercial charging points, government has already located some stations, some places where charging points will be installed. So does this policy cover only the 4-wheelers or the 2-wheelers? It is covered for 4-wheel, 3-wheel and 2 wheels also. There are different incentives for that. Sir, you mentioned about this scrappage for Come out for the electric vehicles. Exact number I'm not remembering. There are district wise report which was given there. The network is not working. More than 5,000 I think is there. Now government is encouraging the people to go for electric vehicles, and that is the reason why incentives are being given, 25,000 per vehicle, and also registration fee will be totally free. And ईस्ट खासी हिल्स के मौकासियांग में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 38 वर्षीय सानबर रानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 6 नकाबपोश आरोपियों ने तीनों को टैक्सी में अगवा कर जंगल ले जाकर हमला किया। एक घायल का इलाज निग्रिम्स में चल रहा है, जबकि दूसरी चलती गाड़ी से कूदकर बच निकला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शिलांग में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने ऑपरेशन फ्री फ्लो शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य इलीगल और हैपोजिट पार्किंग पर सख्त कार्रवाई कर ट्रैफिक को सुगम बनाना है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विवेक सेम ने शिलांग ट्रैफिक एनफोर्समेंट टीम को नए व्हील क्लैंप्स सौंपे और निष्पक्ष एवं सख्त एनफोर्समेंट के निर्देश दिए। अभियान के तहत नो पार्किंग जोन्स में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 हफ्तों से लापता व्यक्ति का शव सोमवार को 12 माइल के वेडियंगवा स्ट्रीम से बरामद किया गया। मृतक की पहचान मॉडर कुरकलांग के रूप में हुई है, जो मछली पकड़ने के लिए घर से निकले थे और तब से लापता थे। एसडीआरटी के मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
kegiatan di publik Oh, kalau seperti ini mana? Mas, saya deliver piang mah. Dalam tak kau. Relief piang mah. Jalan. Sudah beda. Bantu break. Menyam Pak objek Pak. Pak. Bu, punsong mo. Punsong ba hajar mo? भारी बारिश के बावजूद वेस्ट बंगाल में तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। शियालदा से दोरीना क्रॉसिंग तक निकाली गई इस यात्रा में 25,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और भारत तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। সরাসরি এই মুহূর্তে জি বাংলার ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে লোগো, সেই বামপন্থীদের লোগো কার্যত মাটিতে দিয়ে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই দৃশ্য আপনারা এই মুহূর্তে এখন দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি জি বাংলার মাধ্যমে। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। You think champions are made in the arena? They rise from the streets. The streets remember champions. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं बाकी की खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। शर्मिला धांकर ने वुमेन्स शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरव दिलाया। इसके साथ ही वो पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। The closest competitor was Zinabu Iza. So we're seeing a brief kind of award here for Kanu Jarkapalu Sheila of India, and she has been told it's perhaps a temporary upgrade. I don't know if we'll get it away tonight. They might have to reschedule the medal ceremony for tomorrow. And there could be counter-protest here as well. We're seeing the Indians celebrate what they were being kind. पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि कथित ककरोच आंदोलन पाकिस्तान के लिए बड़ी सफलता है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार बताया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि आंदोलन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। इन दावों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हुई है। So I think all in all great success, और मैं समझता हूँ कि इसको जो धक्का लगा है वो इतना नरेंद्र मोदी को एक ज़ाती तौर पे लगा, और दूसरा ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है ये जिसके अंदर ये सारे हिंदू कल्चर को प्रॉप अप किया जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम
कल्चर और पंजाबी कल्चर और सम अदर कल्चर। तो ये जो है इसको चैलेंज हो गया। हाँ, शऊर ने उसे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। संसद भवन पर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के संशोधन ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बियान के इस्तीफा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एनडीए नेता स्वाति मलिवाल और सुष्मिता देव भी शामिल हुई। अमेरिका की लेखिका रेनी लिन ने दावा किया है कि धर्मेंद्र प्रधान मुगल इतिहास को भारतीय सिलेबस से हटाने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय लॉबी के निशाने पर आ गए थे। उनका कहना है कि ये लॉबी भारतीय पाठ्यक्रम में हिंदू शासकों के इतिहास को जगह नहीं देना चाहती थी और धर्मेंद्र प्रधान का हटाना गलत था। ये उनके व्यक्तिगत विचार है। Dear Indians, never forget the contributions of Dharmendra Pradhan. Indian history books were filled with the story of Mughal rulers. Dharmendra Pradhan assumed the role of education minister in 2021 and removed irrelevant portions that glorified foreign invaders. The new NCERT books now put weight on Indian kings and their achievements. Do you know, ever since he made these changes, a very powerful lobby has been targeting him. मेघालय हाईकोर्ट ने मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बर्निहाट की प्रदूषित इंडस्ट्रीज और उमट्रियो नदी में प्रदूषण के खिलाफ की गई कार्रवाई पर विस्तारित एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस जैंदिया हिल्स की कई नदियों में प्रदूषण को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही NEERI की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर की गई कार्रवाई का पूरा विवरण भी बोर्ड से तलब किया गया है। खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।